This is a bit about me till everyone joins. Dive to Learn is my own platform. Good morning, ma'am. I'm co-founders at Dive to Learn. Apart from that, I work as a lecturer in SK College. Apart from that, I have a couple of other engagements as well. I work as a visiting faculty in a couple of more colleges. I have 2 years of experience in teaching, specifically online teaching, and 6 years of corporate experiences, including organizations like KPMG. Now, who had joined by the name of Nandini? That is Janak Nandini, I think. Okay, so I have worked with a couple of startups and a few brands to tell you, KPMG, JP Morgan. Okay, I've done my MCOM from University of Mumbai, BMS, Bachelor's in Management from University of Mumbai. I have qualified JRF June 2019 with 99.91 percentile. My AR was 75, All India rank. I've also qualified management December exam. Okay. Maharashtra set again I qualified in 2019 and Gujarat set in yes, Bidu, you want to add something? Acha, I've given you option. You guys can keep yourself muted. अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप unmute करके कह सकते हो, ठीक है? So that the session will be interactive. Bidu, you have raised your hand. If you want to tell something, tell quickly, or we will start. Almost everybody had joined by now. Okay. Few things. Dive to Learn app. Those who have not downloaded, please download it because इससे आपका पेपर 1 के जो है काफी सारे है. With regards to Indian logic, there are 100 MCQs only on Indian logics updated on the site. So see, today the session will be more of a conceptual. The flow of session will be like I will be taking you through the basic concepts, basic concept, and then detailing of concept, and then I will cover the last half an hour. I will cover the previous year questions specifically जो कि पेपर में आए हुए हैं जून और दिसंबर 2019 में, क्योंकि यही दो एग्जाम जो है एक्चुअली में हुए हैं. And then there are 100 MCQ. I will try to cover these also as much as possible. But since covering entire MCQ and concept, we have a 2-hour constraint. So we will have to do concepts first, and then how much ever the time permits, we will do the MCQs. Okay. So Unacademy also, my platform is live. You can go and check out. Dive to Learn also, I mentioned few of details about myself. Channel, those who have not subscribed a YouTube channel of Dive to Learn, please go and subscribe. Okay, so this was a brief about me. Now we will start. See, today's session is particularly with regards to Indian logic. The upper part of it, both your Western fallacy and Shikha can't hear me. Is anybody else facing this issue? Am I audible? Okay. I think I should be audible to others. Please confirm Supriya and Nandini, Bidu. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. Siksha, sorry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Siksha, I can hear you. you're not on mute, and I can't Yes, ma'am. hear you as well. So, Siksha, if you Ma'am, can, now I'm audible. then talk and tell me if you can speak. Otherwise, please. Ma'am, I have unmuted myself. Connectivity issue at your end. Okay. सुप्रिया ऑल्सो इट्स ऑडिबल. ठीक है. शिक्षा, आप बच्चा आप एक बार देख लो अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखो ये जो पोर्शन है आपका वेस्टर्न फैलेसीज है इसमें. ठीक है, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों वेस्टर्न फैलेसीज पढ़ना है. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जैसे कॉनोटेशन, डोनोटेशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये सारा कुछ जो है आपको ओके. ठीक है, गुड.
सो ये सारा कुछ जो है आपको अलीशा मैम कवर करवाएंगी टुडे। आज का जो सेशन है इसमें हम इंडियन लॉजिक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, सो वी विल ट्राई टू गो एज स्लो एज पॉसिबल, बट गिवन सेड दैट वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर पोर्शन एज वेल। सो अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी मैं फास्ट जा रही हूँ, देन यू कैन स्टॉप मी, ओके। सो इफ यू लुक एट सिलेबस, देखो आप सबसे पहले सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है मीन्स ऑफ नॉलेज। एंड मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज को ही हम प्रमाण कहते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? ज्ञान का साधन होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आप देखोगे प्रमाणास में 6 प्रमाण मेंशन है। ये 6 प्रमाण जो है ना, ये एज पर वेदांत फिलॉसफी है, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स देखेंगे, जिसमें से वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट इज Vedanta philosophy, and Vedanta philosophy believes in all these 6 pramanas. Now if you look at syllabus, both in Hindi as well as in English it is mentioned, so we will try to talk interchangeably. हम हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रत्यक्ष मतलब ही परसेप्शन होता है। कहीं कहीं ऐसी भी गलती हो जाती है जहां पर आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि प्रत्यक्ष और परसेप्शन। एग्जाम में आप देखोगे 2 शिफ्ट के जो एग्जाम हुए हैं जिसकी एनालिसिस हमने की है, उसमें हमने देखा है कि कहीं कहीं पे तो प्रत्यक्ष पूछा है और कहीं कहीं पे परसेप्शन पूछा है। सो वी हैव टू हैव नॉलेज ऑफ बोथ द नेम्स। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में दोनों आपको साइमल्टेनियसली पूछा ही गया है, चाहे प्रत्यक्ष लिख के आए चाहे परसेप्शन लिख के आए। यू शुड बी थरो दैट इट इज योर परसेप्शन, ओके। नेक्स्ट इज योर अनुमान। अनुमान इन्फरेंस, उपमान कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति इम्प्लीकेशन, अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना चूंकि स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इस सारे प्रमाण में सबसे ज्यादा डिस्कशन किस पर हम करेंगे? अनुमान पे करेंगे, बिकॉज अनुमान के अंदर अनुमान का क्लासिफिकेशन हमने देखना है, और हमने क्या देखना है? हेतुभाष। हेतुभाष क्या है? वो भी अनुमान का ही हिस्सा है। अनुमान के दोष को हेतुभाष कहते हैं, दैट इज फैलेसी ऑफ इन्फरेंस। सो दिस इज ऑल्सो फैलेसी। दिस इज इंडियन लॉजिक फिलोसफी। भारतीय दर्शन में जिसको फिलोसफी माना गया है, दैट इज योर हेतुभाष। हमने वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ना है, वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ना है इसी यूनिट में, विच मैम विल बी कवरिंग विथ यू गाइज, एंड आई विल बी टेकिंग अप इंडियन फैलेसी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो स्टार्टिंग विथ फ्यू ऑफ द बेसिक थिंग्स लाइक व्हाट इज लॉजिक। हम कहते हैं किसी भी काम के का जो है लॉजिक क्या है। हम किसी भी काम को करते हैं तो हम उसका लॉजिक पहले खोजते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई ऑफ अ थिंग ढूंढते हैं, why we are doing particular thing, that is the logic behind we want to understand. So logic is a particular way of thinking. See, every person may have a different way of thinking, a different way of thinking. मेरा लॉजिक कहने का मतलब आपके लॉजिक से अलग हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सांख्य फिलॉसफी, हम बात करते हैं योग फिलॉसफी, हम देखेंगे न्याय फिलॉसफी, हम देखेंगे वेरियस फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी। तो हर एक दर्शन का जो है अपना अपना विचार होता है, अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। एंड व्हाट इज द वे विच वी अराइव एट लॉजिक इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ रीजनेबल एंड गुड जजमेंट। हम किसी भी बात का अगर लॉजिक देते हैं तो आपने देखा होगा कि हम उसको जो है किसी भी प्रूफ द्वारा जो है वैलिडेट करते हैं कि अच्छा दिस इज द लॉजिक ऑफ इट, ओके। सो कहने का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी प्रकार के रीजनेबल गुड जजमेंट के आधार पर लॉजिक पर अराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है, सारे जो व्यक्ति हैं वो मॉर्टल हैं। अब हम कह रहे हैं जॉन इज अ मैन, जॉन इज अ मैन। So हम जब कह रहे हैं John is a man, that means John is also mortal. So this is the kind of syllogical relationship which we even look in while we are doing syllogs, right? Syllogism जब हम करते हैं तो हम ये derivation देखते हैं, all men are mortal, John is a man, therefore John is also mortal. ठीक है। If you talk historically, 3 prominent traditions of logic are Chinese logic, Greek logic and
Indian logic. So Indian logic is one of the ancient logic. So if a question like this comes कि what are the three original traditions of logic, mind you यहाँ पर western logic like countries like America who say themselves they are superior in all aspect, which is not historically true. अमेरिका सुपर पावर कब बना है आपको पता होगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब उसकी मिलिट्री पावर बढ़ी है तभी जाकर के जो है अमेरिका जो है एक सुपर पावर बना, राइट. सो 3 ट्रेडिशंस ऑफ लॉजिकल स्कूल हैं, उसमें से भारतीय दर्शन एक है. और इसीलिए आप देखोगे सिलेबस चेंज के बाद जो है लॉजिक को ऐड किया गया है, लॉजिक को जो है इंक्लूड किया गया है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी, और हमारे एग्जाम में भी जनरल पेपर 1 में इसको इंक्लूड किया गया है. अब इंडियन लॉजिक की बात करें तो इंडियन लॉजिक में भी वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स है. पहला है न्याय लॉजिक, बुद्धिस्ट लॉजिक, जैन लॉजिक. अब देखिए ये तीनों जो है ये कुछ प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और स्कूल ऑफ थॉट्स है ही नहीं. हमने जो है यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं. अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, इंडियन लॉजिक की बात करें, इंडियन लॉजिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है. देखिए 2 चीजें यहाँ पर आई थी. पहली बात थी हम लोग जो है भारतीय लोग जो है ना वो तर्क डिबेट जो बोलते हैं तर्क शिक्षा से डिबेट में बहुत ही आगे होते थे. ओके, सो थियरी ऑफ डिबेट में इंडियंस वर वेरी मच अहेड. एंड देन द सेकेंड वाज प्रमाण शास्त्र. इसी प्रमाण शास्त्र की आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं. इसी प्रमाणों को जो है हम समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रमाण है ये आधार है भारतीय दर्शन के. इंडियन लॉजिक का आधार है ये प्रमाण शास्त्र, और यही प्रमाण शास्त्र अगर आप बात करें ये जो इंडियन लॉजिक है इसका मेजर पोर्शन है. तो इसको अब हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे. प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, अर्थपति क्या होता है, एक एक करके जो है हम देखते हैं. शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है प्रमाण का मीनिंग से. ठीक है, देखिए ध्यान देना यहाँ से. प्रमाण मतलब होता है ज्ञान के स्रोत, ज्ञान का आधार. तो जब हम कहते हैं प्रमाण यानी कि ज्ञान का आधार, हम किसी ज्ञान को कहाँ से पाते हैं, कहने का मतलब हम किसी ज्ञान को कैसे बेस करते हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हम किसी ज्ञान को बेस करते हैं प्रूफ के आधार पे. हमने कभी कोई चीज देख रखा होता है, या तो प्रूफ कैसा हो सकता है, पास्ट प्रूफ हो सकता है, प्रेजेंट प्रूफ हो सकता है, या फिर हम किसी भी तरीके का जो है उसको प्रूफ से एसोसिएट करके देखते हैं. हम कहते हैं ना, हम कोई भी बात कहते हैं तो हम ये पहले कहते हैं कि इस चीज का प्रूफ क्या है. जब हम अपना किसी भी बात का तर्क देते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस चीज का प्रूफ क्या है. प्रूफ क्या है, प्रूफ ही प्रमाण है. ठीक है, प्रमाण का मतलब होता है रियल नॉलेज विच इज ट्रू. वो ज्ञान जिसको हम किसी प्रूफ पे, जैसे कोर्ट में हम कहते हैं ना तमाम गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ये फैसला सुनाती है. सो व्हाट इज दैट, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रूफ, एविडेंस which is legal. Okay, so when we are talking in terms of philosophy, we are also basing our knowledge, हमारे ज्ञान को जो है हम किसी न किसी प्रमाण के आधार पर, किसी न किसी प्रूफ के आधार पर बेस करके हम मानते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला प्रमाण है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विच इज प्रत्यक्ष प्रमाण. तो अब तक हमने क्या समझा, प्रमाण इज अ थियरी ऑफ नॉलेज which encompasses one or more reliable and valid means by which human beings gain accurate and true knowledge. So when we say प्रमाण जो है किसी भी प्रकार का ज्ञान का आधार है, मतलब ऐसा, यहाँ पर देखिए एक चीज पर ध्यान दीजिए, one or more. So when we say one or more, सो वन और मोर का मतलब क्या होता है, वन और मोर रिलायबल मतलब या तो सिर्फ प्रत्यक्ष के आधार पर बता सकता है, या फिर क्या कह सकता है प्रत्यक्ष प्लस जो है, प्रत्यक्ष प्लस उपमान हो सकता है, प्रत्यक्ष प्लस अनुमान होता है. सो प्रमाण इज सच वन सेकेंड. So when we say praman is such a knowledge which encompasses more than one or more reliable means. समझा ये चीज, मतलब प्रमाण में एक प्रमाण भी हो सकता है और एक से ज्यादा प्रमाण भी हो सकता है. सो प्रमाण एक ऐसा ज्ञान है जो कि या तो एक किसी प्रमाण के आधार पर है, वन ऑफ द क्लासिफिकेशन, और मोर देन वन ऑफ द क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से. प्रमाण का मतलब तो प्रूफ होता है, ये हमने देख लिया. अब हम एक एक करके एक एक प्रमाण देखते हैं. प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं सबसे पहले.
देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जिसको हम देख सकते हैं। हम कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मतलब प्रत्यक्ष वो चीजें हैं जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। अब देखो, जब किसी चीज को हम देख सकते हैं तो या तो हम उसको आंतरिक यानी कि फील कर सकते हैं, या फिर हम उसको अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल, सीइंग समथिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्फैक्टरी, नोज से हम उसको स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये जो हमारे 5 सेंसेस के अनुसार जो है हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट इज योर एक्सटर्नल परसेप्शन. Second one is internal perception. So when we say internal perception का मतलब क्या है? Internal perception जैसे for example, I say I am depressed, I say I am hungry, I say I am tired. So these are also kind of experience what we do first hand. So ये इसका कीवर्ड आप नोट ले सकते हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाली जो चीजें होती है, जो या तो हम अपने सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस करते हैं या तो फिर हमारे इंटरनल परसेप्शन होते हैं। तो प्रत्यक्ष के जो है 2 पार्ट्स हो गए। एक हो गया जिसको हम सेंस ऑर्गन के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। सो एनीथिंग विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, बी इट विजुअल, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, टैक्टाइल, टेस्ट और मेंटल, दैट इज योर ऑर्डिनरी परसेप्शन, जिसको हम कहते हैं इस लौकिक परसेप्शन ऑल्सो। तो इसको हम जो है लौकिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं या ऑर्डिनरी परसेप्शन कहते हैं। व्हेन आई से ऑर्डिनरी परसेप्शन, मतलब इसी लोक में, इसी वर्ल्ड में जो है, इसी दुनिया में हम इसकी अनुभूति करते हैं। आई कैन एक्सपीरियंस ऑल दिस इन द इंटायर दिस वर्ल्ड इटसेल्फ। When I say extraordinary, that is अलौकिक प्रत्यक्ष, इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसको समझते हैं अब। So when I say extraordinary, मतलब इस लोक के बाहर की चीजें। So इसके 3 जो है क्लासिफिकेशन है। पहला है सामान्य लक्षण, दूसरा है ज्ञान लक्षण और तीसरा है योगज। जब हम कहते हैं सामान्य लक्षण is perceived from the generality of an object. So when I say samanya lakshan is perceived from the generality of an object means what? Samanya lakshan is perceived from as it is. So and when I say apple is red, I can experience, I can see it, I have understood so far from any other past knowledge that this is a red color and apple is red. So जो चीजें as it is होती है, यथावत होती है, वो होती है आपकी सामान्य लक्षण। मतलब जिस चीज का गुण है, एप्पल का गुण है कि वो कैसा होगा, लाल होगा, ठीक है, समझा सामान्य लक्षण। देन इज ज्ञान लक्षण। जब हम कहते हैं ज्ञान लक्षण, सो ज्ञान लक्षण का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। when one sense organ can also perceive qualities not attributed to it. What do you mean by not attributed to it? For example, I see a plate of rasgulla and rasgulla provided is my favorite food. So what happens, seeing the rasgulla my tongue starts salivation. हम कहते हैं ना, अरे वाह मीठा रसगुल्ला, और मेरे जो है जीभ पे पानी आ जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब मेरा सेंस ऑर्गन, आंख का काम था देखना, राइट, ओनली आई कैन सी इट, बट माई टंग इज ऑल्सो tasting it, tongue is also preparing them for taste. So when one sense organ can also perceive qualities not attributed to it is your ज्ञान लक्षण। क्लियर है? एंड योगज का जो शब्द है वो योग से बना है। देखिए, जब हम योग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम योग की शक्तियों द्वारा हम जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारा कुछ देख पाते हैं। ओके, सो आप कह सकते हो कि योगज वो योगी होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल जो है पावर्स है, एबिलिटीज है। दे कैन सी द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड मोर देन अस। सो एक बार समअप करते हैं। प्रत्यक्ष के जो है, प्रत्यक्ष इज व्हाट वी सी, एंड व्हाट वी सी कैन बी व्हाट वी सी थ्रू सेंस ऑर्गन एंड कैन बी व्हाट वी एक्सपीरियंस थ्रू विद इन। So when I see what we see through sense organ, मैम हेलो, referring to लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष मतलब इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में जिसकी अनुभूति हम इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इंद्रियां मतलब होता है आपका सेंस ऑर्गन। और जब हम कह रहे हैं अलौकिक प्रत्यक्ष, मतलब अलौकिक प्रत्यक्ष को जो है हम
असाधारण प्रत्यक्ष भी कहते हैं। जब हम कहते हैं असाधारण मीन्स समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसका पहला पार्ट था सामान्य लक्षण विच इज परसीव फ्रॉम द जनरलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ज्ञान लक्षण विच इज परसीव फ्रॉम ज्ञान लक्षण। यस मैनू, वॉइस इज ब्रेकिंग। Is it happening for everyone? Voice is breaking. No, ma'am. No, ma'am. Okay. तो जब हम कह रहे थे सामान्य लक्षण मतलब किसी चीज को एज इट इज, एप्पल लाल है, ये एप्पल का गुण है, तो ये सामान्य है, ये साधारण गुण है कि एप्पल लाल है। लेकिन जब हम कहते हैं ज्ञान लक्षण, सो ज्ञान लक्षण में हमने क्या देखा था, एक सेंस ऑर्गन से ज्यादा का काम कर सकता है, दैट इज योर ज्ञान लक्षण। इंद्रियों का क्या काम है, हमारी जो सेंस ऑर्गन है ये हमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस देती है। So when one sense organ, by seeing a plate of rasgulla, I'm also able to do salivation by tongue. So when one sense organ can perceive more than the function of one sense organ, that is your example of samanya jnana lakshan. And yogas have supernatural powers due to the power of yoga, meditation. They have developed kind of supernatural powers that are your yogas. So perception clear, everyone? सी परसेप्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमाणा, और ये 6 प्रमाणा जो है मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा आप ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ से फॉर श्योर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो सेकेंड आगे बढ़ते हैं। Okay, you can give me thumbs up while if I ask you something like it is clear to you, you can give me thumbs up, ठीक है। सेकेंड प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, that is your inference. Okay, so inference यानी कि अनुमान, अनुमान को जो है टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं। देखिए अनुमान का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझो, ये बिल्कुल टिपिकल सा एग्जाम्पल है, कोई भी फिलोसफी की बुक उठाओगे उसमें ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। और इसी एग्जाम्पल से हमारा 3 टॉपिक क्लियर होगा। एक तो हम देखेंगे क्या, अनुमान का टॉपिक, इसके बाद जो है हम अनुमान का जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे, तब भी हम यही एग्जाम्पल यूज करेंगे। और अनुमान के क्लासिफिकेशन के बाद जो है जब हम व्याप्ति का टॉपिक देखेंगे, हेतुभाष का टॉपिक देखेंगे, तो इतने सारे टॉपिक में जो है यही एग्जाम्पल यूज होगा। तो इस एग्जाम्पल को बिल्कुल आप दिमाग में फिट कर लो, और ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। मोस्ट लाइकली बहुत सारे शिफ्ट में आप अगर देखोगे दिसंबर के शिफ्ट में, तो यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं दोनों क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन गेट इन द एग्जाम। सी फिलोसफी जो है, जिनका पेपर 2 फिलोसफी है, फॉर देम इट इज क्वाइट इजी टू crack this paper, but someone like us, like I am from commerce background, it took me almost 2 months to actually understand Indian logic. जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे इंडियन लॉजिक का कोई टीचर नहीं मिला था पढ़ाने के लिए, so I decided that I will study this subject and crack it. So उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है एक बार में ग्रैब करना, like people like us, so because it is a hardcore philosophy का सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल कहता है the hill has fire because it has smoke. ओके, इसको हम समझते हैं पहले। पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, एक वे हमने देखा। सेकेंड वे से इसको हम कह रहे हैं, इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। धुएं पर, धुएं को देखकर, धुएं को देखकर, धुएं को देखकर मतलब धुएं का हमने क्या किया है, प्रत्यक्ष किया है। नाउ वी कैन सी प्रत्यक्ष इज बाय विजुअल। नाउ यू कैन कनेक्ट टू योर प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष से आप कनेक्ट कर सकते हो अनुमान को, है ना। सो धुएं को देखकर ये अनुमान लगाना कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है। ध्यान दो, धुएं को देखकर ये अनुमान लगाना कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है, ठीक है। अनुमान का अगर आप टुकड़ों में तोड़कर देखो तो अनुमान बना है अनु जोड़ मान से। अनु का मतलब होता है बाद में, और मान मतलब होता है ज्ञान। सो किसी
पूर्व ज्ञान के मतलब किसी पहले के ज्ञान के बाद पाया जाने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता है। कैसे? हमने चूल्हे में देख रखा है, हमने चिमनी में देख रखा है कि पहले हमने चूल्हे में क्या देखा था कि चूल्हे में धुआं था तो इसलिए चूल्हे में आग थी। चिमनी में हमने देखा था कि चिमनी में धुआं था तो चिमनी में आग थी। इसी आधार पर जैसे ही हमने पर्वत पर धुआं देखा, हमने अनुमान लगा लिया कि पर्वत पर क्या है, आग है। सो पर्वत पर धुएं का देखकर अनुमान लगा रहे हैं। ध्यान ध्यान दीजिएगा, अनुमान कैसे लगा रहे हैं? अनुमान हम किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर लगाना है, और पूर्व ज्ञान के आधार पर लगाया हुआ पाया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। अनुमान में देखो, अब कभी कभी शिफ्ट में कैसे आया है, स्मोक को मिडिल टर्म कहते हैं। इंडियन लॉजिक में कहे तो स्मोक होता है कारण, जिसको हेतु कहते हैं। जिस कारण को देखकर हम यह अनुमान लगा रहे हैं, मेजर टर्म का जो है आभास कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। So we are inferring, so we are drawing inference there. See, inference may or may not be true. This you should understand first thing. हम अनुमान लगा रहे हैं, तो क्या ये फुल प्रूफ ज्ञान है? क्या हम कह सकते हैं विथ श्योरिटी कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगा? कैन समवन टेल मी विथ श्योरिटी जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगा? No, right? We cannot say that way because, for example, if you see example of a fireball, ठीक है, फायर बॉल का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, फायर बॉल में आग होता है लेकिन फायर बॉल में कोई धुआं नहीं होता है। सो रिवर्स कैन मे और मे नॉट बी ट्रू। जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जहां धुआं होगा पूर्व ज्ञान के आधार पर हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि पहले हमने चूल्हे में देख रखा है, पहले हमने जो है चिमनी में देख रखा है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो ऐसे ही जब हम पर्वत पर धुआं देखते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि पर्वत पर आग है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? अब इस टर्म्स को क्लियर करते हैं। देखो, हेतु मतलब होता है कारण, ठीक है। हेतु मतलब जिस चीज को देखकर, जो रीजन है जिसके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान लगाने का जो कॉज है, जो रीजन है, वो कहलाता है हेतु या फिर मिडिल टर्म, ठीक है। अब मेजर टर्म को देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात किसकी है? हम अनुमान किस चीज की लगा रहे हैं? अनुमान हम लगा रहे हैं आग की। सो मेजर टर्म कहें या फिर साध्य कहते हैं, ठीक है। और मेजर टर्म जिस पर बैठता है, जिस पर लाई करता है, जिस पर डिपेंड करता है, तो ये एक माइनर टर्म हो गया। दिस वी शुड gain from this sentence itself कि major term we are talking is if major term is fire then minor term obviously will be the small term. So अगर हम इसको बिल्कुल टिपिकल शब्दों में कहें तो साध्य की जिस पर सिद्धि होती है वह कहलाता है पक्ष। पक्ष वो है जिसकी सिद्धि साध्य पर होती है, ठीक है। हेतु जो है आपका कारण हो गया, और उसके बाद जो है पक्ष जो है आपका माइनर टर्म है, और साध्य जो है आपका मेजर टर्म है। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ सबको? ये तीनों टर्म एज इट इज जो है आपको याद रहेगा। ओके, नंदिनी क्लियर? हाँ जी मैम। एक चीज हम जब कह रहे हैं फुल प्रूफ नॉलेज की बात, तो फुल प्रूफ नॉलेज हमने देखा था जब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष को हम आंखों से देख सकते हैं या फिर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमने देखा था यहाँ पे दो चीजें, एक था आपका लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा था आपका अलौकिक प्रत्यक्ष, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। दिस वी डिस्कस। सो इफ यू टॉक अबाउट द सर्कल, दिस इज द फुल प्रूफ नॉलेज। अभी इन्फरेंस हमने देखा, सो इन्फरेंस इज, वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन दैट इन्फरेंस इज रिलेटिवली a weaker perception compared to your perception. Okay, an analogy and what we will see later. But if we talk about the अर्थपति and अनुपलब्धि, see कोई स्कूल आप देखोगे कि अर्थपति और अनुपलब्धि को प्रमाण मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है अर्थपति और अनुपलब्धि को? इज बिकॉज दीज आर वेरी वीक प्रमाण। सो अगर मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स देखोगे तो आप ये चार प्रमाण को मानता ही है। और अगर आप प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष को जो है सारे स्कूल्स मानते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट डिनाई, राइट। सो एक जो स्कूल था चरवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी,
चरवाक ओनली बिलीव इन प्रत्यक्ष प्रमाण. चरवाक बोलता था जो दिखता है वही प्रमाण है, बाकी कोई प्रमाण ही नहीं है. बट मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स, इफ यू सी at least these 4 of the pramanas, like if you talk about your syllabus is based on Nyaya philosophy. So if we talk about Nyaya school of thought, Nyaya school certainly believes in the existence of all these pramanas, all these 4 pramanas. Okay, कौन-कौन से स्कूल कौन-कौन से प्रमाण को मानते हैं यहाँ पे मेंशन किया है. This we will have a look later once we wrap up the pramana. अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी. This Zoom free session has a limitation of 40 minutes. So those who are new to Zoom, as soon as it ends, you click on the same link and we connect again. So twice we have to do it because it's a 120-minute session. So 2 बार जो है हम लोग डिस्कनेक्ट होंगे और डिस्कनेक्ट कर फिर वापस जो है आप उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना. ठीक है. अब व्याप्ति जो है एक देखिए व्याप्ति क्या है, यहाँ पर मैं बस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको व्याप्ति टर्म. हमने देखा हेतु मतलब क्या है, हेतु मतलब है रीजन. ठीक है, सेम एग्जांपल है. और साध्य मतलब जो है क्या है, मेजर टर्म है ना, मेजर टर्म है आपका. सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप को हम व्याप्ति कहते हैं. व्याप्ति सिलेबस में आपके मेंशन है, तो व्याप्ति को हम बहुत डिटेल में करेंगे बट आफ्टर वी फिनिश ऑल द प्रमाणास. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रमाण. अच्छा, ये जो है अनुमान का क्लासिफिकेशन है, इस पर हम थोड़े टाइम बाद आते हैं वंस वी फिनिश द अदर प्रमाणास. ठीक है, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं. So the third one is comparison. So far what we have seen is प्रत्यक्ष, perception and inference. इसके क्लासिफिकेशन है, व्याप्ति है, ये जो है पेंडिंग है. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम उपमान की तरफ. हम कहते हैं उपमा देते. उपमा अलंकार हिंदी में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी आता है, हमारे साथ अभी हिंदी की भी मैडम जुड़ी हुई है, सो शी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. उप मतलब क्या होता है, समानता, और मान मतलब हमने देखा ही है नॉलेज. सो किसी चीज की सिमिलैरिटी से पाया जाने वाला ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है. उपमान derivatively means the knowledge which is arrived by similarity between two things. How? Let's understand through one example. For example, if a person does not know ginger, अगर आपको ये नहीं पता है कि अदरक क्या चीज होती है, लेकिन आपको ये पता है कि हल्दी क्या होती है, तो आप कह सकते हैं अदरक वो चीज होती है जो हल्दी जैसी दिखती है ना. सो फ्रॉम known, what we know is your turmeric. हल्दी को आप जानते हैं, so we can say knows from another person that ginger is like turmeric. The shape of it when it comes from the ground, it's similar. So after hearing, कहने का मतलब है after hearing the words of familiar things, जो चीज हमें ऑलरेडी पता है उसकी तुलना जब हम किसी चीज से करते हैं, उसकी हम उपमा देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, उपमान प्रमाण. एक और एग्जांपल देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होता है. देखिए एक चीज समझिए, सिमिलैरिटी इज द बेस ऑफ उपमान प्रमाण. मेरे घर से तो आप फैमिलियर हैं, आपके घर से आप खुद फैमिलियर है, राइट. सो व्हेन आई से आई लुक एट अ हाउस एंड आई से इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक माय हाउस. सो जॉन का घर मेरे घर जैसा है. सो अगर हम जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दिस गवाया इज लाइक माई काउ. गवाया और काउ को जो है हम सिमिलर बता रहे हैं. सो ये सारे कीवर्ड्स हो जाते हैं. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस सारे कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड दिस इज योर उपमान प्रमाण. ओके, so upman describes the knowledge derived from comparison and it generally corresponds to analogy. And analogy is hot favorite of NTA NET. हर एक एग्जाम में, पहले तो हमें इंडियन लॉजिक नहीं पढ़ना था, लेकिन फिर भी हर एक एग्जाम में जो है एनालॉजी से क्वेश्चन आता ही आता था. एनालॉजी इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप. जॉन का घर मेरे घर जैसा, तेरा घर मेरा घर ऐसा नहीं होता है. जिंजर इज लाइक टर्मरिक, गवाया काऊ एक जैसा है. तो उपमान का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? नाउ वी मूव टू टू मोर प्रमाणास, दैट इज अर्थपति और अनुपलब्धि. अब एक चीज समझिए, अर्थपति और अनुपलब्धि जो है ये क्या होता है. अर्थपति और अनुपलब्धि जो है दोनों वीक प्रमाण है. हमने डिस्कस किया कि ये दोनों वीक प्रमाण है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू, यू योरसेल्फ विल बी एबल टू टेल दैट हाउ दे आर वीक प्रमाण. देखिए अर्थ मतलब होता है धन, राइट. हम कहते हैं ना धन है, हिंदी में धन होता है.
सो हम करते हैं अर्थ मतलब किसी चीज का महत्व, किसी चीज का इंपॉर्टेंस, राइट। सो आपत्ति मतलब होता है सपोजिशन और कल्पना। कल्पना वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम कह रहे हैं अर्थपति। जब हमने इससे पिछला प्रमाण देखा था, दैट इज उपमान प्रमाण, हम जो है टू डेफिनेट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। गवाया इज लाइक माई काउ, जिंजर इज लाइक टर्मरिक, या फिर हम कह रहे थे और भी एग्जांपल हमने लिया था, गवाया इज लाइक माई काउ, जिंजर इज लाइक टर्मरिक, माई होम इज लाइक योर होम, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन द अपोजिट ऑफ इट इज योर postulation, derivation from circumstances और अर्थपति where we are assuming the cause, right। यहाँ पर जो हम बात करेंगे यह काल्पनिक होगा। अगर हम कहते हैं चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सो यहाँ पर क्या बाल सोने जैसे होते हैं क्या? बाल क्या एक्चुअली में सोने जैसे होते हैं? नहीं होते, राइट। दिस इज अ कल्पना। हमने किसकी बात की है? कल्पनाओं की बात की है। कल्पना में, ये हमारे इमेजिनेशन में, हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। सो अर्थपति इज अ सपोजिशन ऑफ कॉज एंड कॉज हियर इज अज्यूम, अजम्पशन इज द बेस ऑफ अर्थपति। सो अर्थपति क्या है? अर्थपति इज द knowledge arrived through presumption or postulation. So when I say assumption or postulation, what does that mean? For example, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक आदमी जो है वो नाव से निकलता है, एक जो है, चलो यहाँ पे बताती हूँ। ये एक बोट है, मान लो कि ऐसा एक बोट है, ऐसे इस शेप का बोट नहीं होता है। सो इसको जो है नदी के पार जाना है और इसको ये डेस्टिनेशन तय करने में 1 आवर का टाइम लगता है, ओके। अब मान लीजिए ये पर्सन जो है 2 PM को निकला है और आप क्या करते हो, आप अज्यूम कर लेते हो कि अब टाइम क्या हो रहा है, लेट्स से अब टाइम हो रहा है 4 PM, ठीक है। 2 बजे बंदा निकला, यूजुअली इसको 1 घंटा लगता था एक डेस्टिनेशन से दूसरे जगह पर जो है जाने में, और आप अज्यूम कर ले रहे हो 4 बज गया, और आप अज्यूम कर लेते हो कि 4 बज गया है, बंदा जो है डेस्टिनेशन पर पहुंच गया होगा। अब कुछ और चीजें हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ही मे हैव टेकन अ लॉन्गर रूट, राइट, कैन बी अ वन प्रोबेबिलिटी, नंबर 1। Second probability can be the ship in between the water body can break down, नैया डूब गई है। सो दोनों केस में क्या हो रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं, but the assumption may or may not be true, right? So that is the example. If a person left in a boat on the river earlier and the time is now past the expected time of arrival, the circumstances support the truth postulate that the person may have reached the destination. So this is a kind of assumption, okay। clear है ये term? अर्थपति क्लियर हुआ? वी आर अज्यूमिंग समथिंग, और यू वांट मी टू एक्सप्लेन मोर? अच्छा ठीक है, टाइम इज लेस देन 1 minute, सो एनी टाइम इट स्टॉप्स, सो वी विल कनेक्ट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नॉन परसेप्शन, निगेटिव या फिर कॉग्निटिव प्रूफ। अगर फुल प्रूफ होता है तो वो क्या था, आपका परसेप्शन था, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, निगेटिव प्रूफ की बात कर रहे हैं। सो योर निगेटिव प्रूफ यानी कि आपका होता है अनुपलब्धि। अनु मतलब नन, किसी चीज के ना होने से, और उपलब्धि मतलब अवेलेबिलिटी, यानी